أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Translation. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful. There is no God but Allah. He is the living, the sustainer of all things. He cannot be touched by drowsiness or sleep. To him belongs all that is in the heavens and the earth. Who are you to recommend to him without his permission? He knows everything that is in front of or behind the eyes. They cannot encompass anything beyond his knowledge, but as much as he wills. His throne encompasses the heavens and the earth, and it is not difficult for him to contain them. He is the highest, the greatest. Sadaqallahul Azim. Assalamu alaikum, everyone. It's so wonderful to see everyone here to celebrate a very, very special birthday or a birth anniversary of our only Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah. Thank you so much. I would like to welcome our chairperson of our ELP committee, Sayyid Nusrat Ali, our executive director, Muzaffar Arif Khan, and of course we've got Dr. Nausheen Wasi. She has very graciously accepted our invitation to be here to talk on our Quaid and basically let you all know, especially our students, how important and what a great personality Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is, was, and will always be. And I will not say birth anniversary. For us, Quaid-e-Azam is always alive. So for me, it is happy birthday, Quaid-e-Azam. Let me introduce Dr. Nausheen Wasi. Dr. Nausheen Wasi is Assistant Professor and Director Program of South Asia Studies at the Department of International Relations, University of Karachi. She has 22 years of experience in research and teaching. She is visiting faculty at the Institute of Business Administration, that's IBA, and National Institute of Management. She's a recipient of many research awards and member advisory and editorial board of several research journals in Pakistan. She has also served at Pakistan Institute of International Affairs, Karachi. She is a co-editor of 2 books, Making Sense of Post-COVID-19 Politics, which was in 2020, and then the second book was Pakistan-Afghanistan Relations, Pitfalls and the Way Forward. This was published in 2021. Thank you so much, and let's greet her with a round of applause from the PACC. Assalamu alaikum. Thank you very much. I thank PACC administration, Ms. Marzia Shah especially, for inviting me to talk to you people on our great leader Quaid-e-Azam. I have scheduled my presentation in a very different way because when we were having initial discussion on this talk, I was asked to give you people some thoughts the way Quaid-e-Azam is not perceived in our city, in our country, and
youth have a very little idea about what Qaid's vision was. We know about Qaid-e-Azam, but do we really understand? And from this question, I will begin my presentation. A man known to all Pakistanis, Jinnah. And when we start this program, a quote was said, told to you people by Italian journal. Qaid-e-Azam is a kind of a man who is born in centuries. And Qaid-e-Azam, when is viewed in political way, is also a very different man, because few people have changed the course of history the way Jinnah has changed. So when we talk about great people in the world, we take aspiration from many ways. At different level, we take aspirations. Say, when we talk about the great people in history, we get motivation, we get purpose, we get sense of life, sense of thing, sense of the world. When we talk about the national leaders in our history, they give us meaningfulness. So we are able to learn with their purpose, with their meaning, with their struggle, if we understand them. So once we talk about Qaid-e-Azam, everybody knows Qaid-e-Azam founded Pakistan. How did he found Pakistan? That is important for us to know. What he desired for a country, what he desired from his nation, why he struggled for this homeland, that many people said a दीवाने का ख्वाब. यही कहा जाता था ना उस वक्त के दीवाने का ख्वाब है. और जिन्ना भी एक वक्त में मायूस होकर चले गए थे सब कॉन्टिनेंट छोड़ के. वो ये समझते थे कि शायद इस पर्पस को परसू नहीं किया जा सकता. तो हमें समझना चाहिए, हम बायोग्राफी पढ़ते हैं जिन्ना की ग्रेड 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक. अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप, हालांकि हम पाकिस्तान हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं सब, लेकिन पाकिस्तान हिस्ट्री हमें उस तरह से पढ़ाई नहीं जाती जिस तरह से पढ़ाई जानी चाहिए. फिर लीडर्स पे स्ट्रेस नहीं होता हमारे यहाँ, लीडर्स की टीचिंग्स पे स्ट्रेस नहीं होता. वी स्ट्रेस ऑन डेट्स एंड द इवेंट्स, and thus we memorize them, and that become part of our rot memory. And the purpose actually rots in that. So that is another story. So Jinnah के बारे में हम सब जानते हैं. 25th December is his birthday. We celebrate it every year. Then 11th September we remember him as his death anniversary day. On 14th August we remember him, and then we forget. So are these 3 dates important for us to recall what Jinnah perceives for Pakistan? No. So that is why we need to understand what Jinnah was, what his philosophy was, what he struggled for. अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी शख्स की, बड़े शख्स की हिस्ट्री को समझते हैं तो हमें उस ज़माने के पॉलिटिकल हालात को समझना होता है. उस वक्त का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस वक्त दुनिया की फ़िलॉसफी, पॉलिटिकल फ़िलॉसफी किस तरह से काम कर रही है, क्या उसके फ़ीचर्स हैं, क्या फ़ीचर्स नहीं हैं. जिन्ना की ग्रोथ जिस सदी में हुई उसमें एक बहुत बड़ी बहस थी लिबरलिज़म की, लिबरल पॉलिटिक्स की. अब लिबरल पॉलिटिक्स क्या है? मुख्तसरन लिबरल पॉलिटिक्स ये है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिवेल करें सोसाइटी में. सोसाइटी में जितने तबके हैं उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती हो ग्रो करने की, उन सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाता हो, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों. प्लूरलिज़म हो सोसाइटी में, कोएग्जिस्टेंस हो सोसाइटी में, टॉलरेंस हो सोसाइटी में. और लिबरल पॉलिटिक्स के फॉलोअर्स इन तमाम प्रिंसिपल्स की प्रिवेलेंस के लिए काम करते हैं. ये वो भी ज़माना था जब नई स्टेट्स ग्रो कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ नेशन स्टेट. तो नेशन स्टेट कोई ऐसा ग्रुप जो किसी
फीचर पर इकट्ठा हो गया हो। वो फीचर रिलीजन से भी एसोसिएटेड हो सकता है, कल्चर से भी एसोसिएटेड हो सकता है, इकोनॉमिक गोल्स पर भी हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी भी हो सकती है। तो अगर वो कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल इज लिविंग इन एन एरिया who have particular set of principles for them to lead their life, they could demand for themselves a state as per international law. So many people who later became the great leaders were struggling in that atmosphere. That was the period when colonization was also coming to an end. What was colonization? The big powers' right to make the other states their colony, to make the people their subservient, their subjects. एक ज़माना था, बड़े पावर्स का दौर था, और जो रियासत बड़ी होती थी उसके लिए ये लीगली एक्सेप्टेबल था कि वो छोटी रियासतों को अटैक करें, एनेक्स करें, उन्हें अपनी किंगडम का हिस्सा बनाएं और उन्हें रूल करें। ये कॉलोनाइजेशन कहलाती थी। अब 20th सेंचुरी चूँकि लिबरल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा प्रीवेल कर रही थी, इसलिए ये कहा गया कि भाई हर नेशन को ये राइट है कि वो अपने लिए एक स्टेट डिमांड करे, उसकी स्ट्रगल करे, लीगल स्ट्रगल करे, और अगर वो स्टेट हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद वो उस रियासत के अंदर अपनी मर्ज़ी के क़वानीन बनाएं। तो बहुत सारी रियासतों में दुनिया की, सिर्फ यूरोप में नेशन स्टेट्स थी, उसके अलावा जिस हिस्से में हम रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ये सब बड़े पावर्स की कॉलोनीज़ थीं। अब यहाँ पर भी आज़ादी की मूवमेंट्स थी। 1857 से पहले तक हम भी एक एम्पायर थे, मुग़ल एम्पायर, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और फिर ब्रिटिश एम्पायर फॉर्मली बना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से तो 300 सेंचुरी से पहले यहाँ आ चुके थे और बहुत इलाकों में उनका पॉलिटिकल असर रसूख भी था, मगर वो मुकम्मल तौर पर राज इस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे। 1858 के बाद राज इस्टेब्लिश हुआ, द ब्रिटिश राज, और उसी वक्त से ज़ाहिर है थोड़े अरसे के बाद, 3 डेकेड्स के बाद, 1885 अगर आप ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से ट्रेस करते हैं, तो फिर लिबरल पॉलिटिक्स से ही मुतासिर होकर लोगों ने इस इलाके में आज़ादी की जद्दोजहद शुरू कर दी, और इसमें फिर आगे बढ़ते बढ़ते जिना का किरदार सामने आया। जो पाकिस्तान मूवमेंट है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। दिस इज़ व्हाट आवर स्टूडेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल क्या है? जिना का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उन्होंने लिबरल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए, मुस्लिम लीग की क़यादत करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के थ्रू पाकिस्तान अचीव किया। ये बहुत अहम बात है। ऐसा नहीं है जो हमें एक सिंगल नैरेटिव दिया जाता है ना कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते थे और बस फिर उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। ऐसा लगता है कि हमने हिंदुस्तान से आज़ादी ली है। हमने हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं ली, हमने आज़ादी ब्रिटिशर से ली है, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटिश राज था। अगर हम थोड़ा सा सियासत को सही तौर पे समझें तो फिर हम आज के ज़माने की सियासत को भी बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो एक तो जिना का ये बहुत बड़ा कारनामा। अब यहाँ पे नेशन, क्योंकि नेशन स्टेट की मैंने बात की, अब 2 नेशन थेरी हम ट्रेस करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान ने जब कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 नेशंस हैं। चूँकि उस वक्त का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ही ये था, नेशन स्टेट्स इवॉल्व हो रही थी और पॉलिटिकल लैंग्वेज ये थी कि हम नेशंस की बात कर रहे हैं, नेशन के राइट्स की बात कर रहे हैं, और जो ग्रुप डिस्टिंक्ट है और वो नंबर में ज़्यादा है उसको एक आइडेंटिटी देनी है नेशन की, तो किसी बेस पर तो दी जाएगी। जिस तरह के हालात इवॉल्व हुए सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ रिलीजन बेस बना बाइफर्केशन की। हालांकि सब कॉन्टिनेंट में हिंदू मेजॉरिटी में थे और उसके अलावा बहुत सारी माइनॉरिटीज़ थीं। सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, और उसमें क्योंकि 1857 से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी यहाँ पर, तो पॉलिटिकली तो कॉन्शियस ग्रुप था मुसलमानों का और वो पॉलिटिकली पावर गेन करना चाहते थे। तो ख़याल ये था कि ठीक है, एक ऐसी, अब ये मुख्तलिफ औक़ात में भी
इस पर हम बहुत ग्रेटर डिटेल में अभी बात नहीं कर सकते। जो कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व हुआ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के दरमियान, एक्चुअली वो पावर स्ट्रगल थी, और उसमें फिर हर कौम का अपना मिजाज होता है। यानी आज जो हम मोदी के ज़माने में इंडिया में देख रहे हैं, ये सरफेस आज हुआ है, लेकिन एक्सट्रीमिज़म हिंदू फिलॉसफी में बहुत अरसे से शामिल रहा है। और ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। आज अगर कोई पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में मुसलमानों की हिस्ट्री ट्रेस करेगा तो वो एक्सट्रीमिज़म को अटैच करेगा मुस्लिम हिस्ट्री के साथ। इसी तरह हम उस ज़माने की पॉलिटिक्स में एक्सट्रीमिज़म को अटैच कर रहे हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल राइट्स नहीं होते, इक्वालिटी नहीं होती, स्टेट सर्व नहीं कर रही होती लोगों को, तो ग्रुप एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। यानी माइनॉरिटी एक्सप्लॉइटेड फील करती है। जब माइनॉरिटी ये समझती है कि उसे उसके ड्यू राइट्स नहीं मिल रहे, तो वो ये समझते हैं कि उन्हें फिर अपने लिए आज़ाद रियासत का हक है। वो आज के ज़माने में हम सेसेशनिस्ट मूवमेंट के नाम से देखते हैं बहुत सारी मूवमेंट्स, लेकिन बहरहाल ऐसी मूवमेंट्स होती हैं। तो उस ज़माने में की भी जो पॉलिटिक्स थी उसमें टू नेशन थेरी का कॉन्सेप्ट आया। बेसिकली इट वाज अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट वेयर बाय माइनॉरिटी फेल्ट सप्रेस्ड in the hands of the majority, and the subsequent developments in the subcontinent proved that in the presence of a majority which wants its domination, minorities cannot get their rights. So Jinnah's struggle was also to get the right for minorities right from the beginning. जिन्ना का कहना ये था कि जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें भी इक्वल राइट्स होने चाहिए। तो जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट सब कॉन्टिनेंट में हो रही थी उसमें जिन्ना हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इसलिए करते थे ताकि माइनॉरिटीज़ को उनका राइट मिले। वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं थी, एक स्ट्रगल थी जिन्ना की। तो जिन्ना का आइडिया ये था कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगा जहाँ ऑब्वियसली मेजॉरिटी ही का जो एस्पिरेशन होती हैं वो गवर्न करती हैं रियासत को। तो मेजॉरिटी मुस्लिम होगी, पाकिस्तान वुड बी अ मुस्लिम स्टेट, but it would be an inclusive society where all the minorities will get their due rights as per constitution. तो ये जिन्ना की स्ट्रगल थी, ये जिन्ना का मिशन था। एक और चीज़ अटैच थी नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट के साथ। वो क्या चीज़ थी? जो 20th सेंचुरी में नेशन स्टेट्स ग्रो कर रही थी उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ऑब्जेक्टिव तो इक्वालिटी था, लिबर्टी की हमने बात की, freedom for speech, freedom for action as per the desires of the people, what majority wants in a state. दूसरी चीज़ ये थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो 20th सेंचुरी की नेशन स्टेट डेवलपमेंट की ग्रोथ है उसका बेसिस ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए और उस डेवलपमेंट का बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए, शेयर्ड ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एलीट सेंटर्स बन जाएं। और जो आज पूरी डेवलपिंग कंट्रीज़ का मसला है, हमारे यहाँ एलीट सेंटर्स हैं, हमारे यहाँ शेयर्ड ग्रोथ मॉडल नहीं है। तो हमें क्लास स्ट्रेटिफिकेशन भी मिल रही है और फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे मसले हैं। तो जिन्ना ये समझते थे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत होगा, मुस्लिम स्टेट होगा। कैन यू प्लीज टर्न अनदर स्लाइड इफ़ यू वांट टू, एंड अनदर स्लाइड प्लीज। So Jinnah wants Pakistan to be a Muslim, progressive and a moderate state. ये जिन्ना का विजन था। अब इस हवाले से हमारे यहाँ कुछ यहाँ पे बहुत यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, लेकिन हमारी जो बहुत लर्नेड लोग भी बैठे हैं वो समझते हैं बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अटैच्ड हैं जिन्ना की फ़िलॉसफी के साथ, और मैं ये समझती हूँ कि हमें उन्हें क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। तो एक तो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन ये है, और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आप ये समझेंगे कि जिन्ना सेक्युलर इंसान थे और सेक्युलर इंसान की हैसियत से वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तान की एक सेक्युलर रियासत बनाना चाहते थे। और पाकिस्तान क्योंकि टू नेशन थेरी के नाम पे बना है, टू नेशन थेरी की बेस ये है कि इस्लाम के नाम पे बना है, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स वर टू डिस्टिंक्ट नेशन, तो इस वजह से पाकिस्तान को तो इस्लामी रियासत होना ही था। और इस हवाले से आपको बहुत सारी इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल डिबेट्स मिलेंगी।
अब जैसे मैंने कहा कि हर ज़माने की एक पॉलिटिकल फ़िलॉसफी होती है। जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ बाय डिज़ाइन अ सेक्युलर स्टेट कॉन्सेप्ट, बाय डिज़ाइन, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्यों? अब अगर हम ये कहते हैं कि एक प्लोरल सोसाइटी हो, इंक्लूसिव सोसाइटी हो, जहाँ माइनॉरिटीज़ को भी उनके राइट मिलें, तो ये तो आइडियल स्टेट करें। आपने एक फ्रेज़ ज़रूर सुना होगा, रियासत होगी माँ की सूरत। तो रियासत जब माँ की सूरत होती है तो वो क्या करती है? रियासत आपकी ज़रूरियात को पूरा करती है, जैसे माँ आपकी ज़रूरत को पूरा करती है। रियासत माँ अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती, रियासत भी अपने बच्चों में फ़र्क नहीं करती। माँ अपने बच्चों के मसाइल को हल करती है, तो रियासत भी माँ के बच्चों के मसाइल को हल करेगी। तो रियासत होगी माँ की सूरत, अ स्टेट दैट प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन, प्रॉस्पेरिटी, सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम एंड इक्वालिटी, लव, इफेक्शन। अब ये आइडियल रियासत हो तो जो क़वानीन बने उसके मुताबिक हर शख्स को इक्वालिटी मिले, लिबर्टी मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, मगर ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि रियासत भी एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट टर्म है। रियासत में इम्पॉर्टेंट वो होता है जो रूल कर रहा होता है। तो रिजीम की पॉलिटिक्स है। अब रिजीम जो चाहेगा, जिस तरह की हुकूमतें बनेंगी, जिस तरह के लोग रूल करेंगे वो करेंगे। तो इस मसले को हल करने के लिए अगर सेक्युलर स्टेट हो, यानी सेक्युलर का हमारे मुल्क में तर्जुमा किया गया था लादीनियत, लेकिन लादीनियत नहीं है सेक्युलर का मतलब। सेक्युलरिज्म में बल्कि जावेद जब्बार साहब ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कि ये लादीनियत नहीं है बल्कि हर दीनियत है, इसका सही तर्जुमा हमादीनियत। ये नुसरत साहब देखें जब बैठे होते हैं इस किस्म के काबिल लोग तो आपको अच्छा तर्जुमा देते हैं। अब सेक्युलरिज्म पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है कि रियासत और रिलीजन अलग होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजन फॉलो नहीं करेंगे। रिलीजन इज़ एन इंडिविजुअल बिजनेस, रियासत वुड नॉट इंटरमिंगल विद रिलीजन, क्योंकि अगर आप रिलीजन को रियासत के साथ अटैच करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर सेट को फॉलो करेंगे। वो किसी, अब जैसे मैंने कहा कि रिजीम इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो रिजीम अगर मोदी साहब जैसा है, वो रिजीम अगर ट्रम्प जैसा है, यानी जो एक्सट्रीमिज़म को फॉलो कर रहे हैं, पॉपुलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, हमें नहीं पता ना कि आइडियली क्या, आइडियल सिचुएशन तो कहीं भी नहीं होती, किसी भी ज़माने में आइडियल सिचुएशन रही नहीं है। तो अब आइडिया ये था, पॉलिटिकली डिज़ाइन की गई ये स्टेट, तो ये स्टेट बाय डिज़ाइन इज़ सेक्युलर। अब जिन्ना ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल की 20th सेंचुरी के पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक, उसमें यह था कि एक ऐसी रियासत होगी जहां इंक्लूसिवनेस होगी, और पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट होगा। मुस्लिम स्टेट क्यों होगा? इस्लामिक स्टेट और मुस्लिम स्टेट में फ़र्क ये है, इन अ मुस्लिम स्टेट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। इन एन इस्लामिक स्टेट द गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एज पर शरिया। अच्छा, अगर मेजॉरिटी बनानी चाहे, चूँकि डेमोक्रेसी का ज़माना है, तो मेजॉरिटी इस्लामी स्टेट भी बना सकती है, हमने बना ली। उस वक्त लियाकत अली ज़िंदा थे जब हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास की और उसको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना दिया कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ हो। और उस वक्त भी एडहेरेंस शरिया को नहीं थी, बस ये था कि कोई क़ानून ऐसा नहीं होगा जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो। अब उसकी आप इंटरप्रिटेशन, एक फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिटिकल टर्म में रखी जाती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जिस रियासत में 97% मुस्लिम पॉपुलेशन हो, वहाँ इस्लाम को ख़तरा हो सकता है। अगर इस वक्त आप यूरोप में जाते हैं तो आप ये देखिए कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। पूरी यूरोपियन सोसाइटी अपने रिलीजन फंडामेंटल्स को फॉलो करती है, अपने रिलीजन आइडल्स को फॉलो, रिलीजियस आइडल्स को फॉलो करती है। मेजॉरिटी जो होती है उसका रूल तो चलता ही चलता है। आप हिंदुस्तान चले जाएं, आपको वही माहौल मिलेगा। तो इसमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। अब ये बात, इस बात पर बहस हो रही है हमारे मुल्क में, जो स्ट्रक्चर हमारे मुल्क के ठीक नहीं होते, कि ये रियासत इस्लामी हो या मुस्लिम रियासत हो। जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे। अच्छा, ये सियासत बड़े लेवल, बहस भी सियासी बड़े लेवल पर होती रहेगी। मैं अपने नौजवानों को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिन्ना जैसे थे वैसा पाकिस्तान चाहते थे।
अब जिन्ना क्या चाहते थे? जिन्ना एक डिसिप्लिन्ड आदमी थे, जिन्ना इक्वालिटी पर बिलीव रखते थे, इंक्लूसिवनेस पे बिलीव रखते थे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस पे बिलीव रखते थे, और वो चाहते थे कि उनकी नेशन ऐसी ही हो। जिन्ना ये कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया में एक मिसाल होगा, क्योंकि माइनॉरिटीज़, मतलब जिन्ना के बारे में कुछ मिथ्स भी बहुत मशहूर है ना। जिन्ना के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत फर्म आदमी थे, इमोशनलेस आदमी थे, किसी ने जिन्ना के इमोशंस नहीं देखे। मगर आप जिन्ना पर बायोग्राफीज़ पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि जिन्ना माइनॉरिटीज़ के लिए रोते थे, और ऐसे कई मौके हैं जहां लोगों ने उन्हें दुखी देखा है, और 2 मौके ऐसे हैं जहां रोते हुए देखा है। और ये बात अंग्रेज़ों ने लिखी है, उन लोगों से इंटरव्यू के बाद लिखी है जो शामिल होते थे जिन्ना के साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर, जिन्होंने जिन्ना के साथ काम किया है, कोर्ट रूम्स में काम किया है, जलसों में काम किया है। तो देखिए, पैशन के बगैर तो कोई आदमी काम नहीं कर सकता। तो जिन्ना क्या चाहते थे? जिन्ना एक ऐसी रियासत चाहते थे जो दुनिया में मिसाल बने खुशहाली की, डेवलपमेंट की, और जो दुनिया में मिसाल बने माइनॉरिटीज़ को उनके राइट देने की। और ये जिन्ना कहा करते थे, यानी पाकिस्तान के बारे में आप जो बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस पढ़ेंगे, उनमें से एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि जिन्ना ने माइनॉरिटी का केस लड़ा था। मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे ना, तो वो माइनॉरिटी के साथ खड़े थे। ये जिन्ना का विजन था। कैन यू प्लीज़ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब ये हम समझते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं। डू वी अंडरस्टैंड वेयर डू वी स्टैंड टुडे एंड वाई? और अगर हम ये समझ जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो अगला सवाल ये आता है कि क्यों इस जगह खड़े हैं जहाँ हम खड़े हैं। फॉर श्योर पाकिस्तान डेवलपमेंट का नमूना नहीं है दुनिया में। फॉर श्योर पाकिस्तान टॉलरेंस मॉडरेट सोसाइटी, टॉलरेंट मॉडरेट सोसाइटी को इंडिकेट नहीं करता। तो इसकी क्या वजह है? ऐसा क्यों है? अगर हम एलीट लेवल पर देखें, रिजीम लेवल पर देखें, तो पाकिस्तान में हमारी जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं वो इंटरेस्ट ओरिएंटेड हैं, वो इन्फॉर्म्ड नहीं हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस देता हो उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन पार्टिसिपेटरी पॉलिटिक्स को लीड करती है। और इस वजह से फिर हम बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन का शिकार होकर बहुत सारे ग्रुप में बढ़ गए हैं। अब हमारी जो फ्रेगमेंटेशन है उसकी बेसिस बहुत सारी हैं, यानी हम रिलीजन की बेसिस पर भी डिवाइडेड हैं, रिलीजन में हम सेक्ट की बेसिस पर डिवाइडेड हैं, हम एथनिसिटी की बेसिस पर डिवाइडेड हैं, और ये फ्रेगमेंटेशन अथॉरिटेरियन रिजीम को सूट करती है। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि हमारे यहाँ अगरचे वाज़े स्पेल रहे हैं मिलिट्री गवर्नमेंट के और सिविलियन गवर्नमेंट्स के, हाफ of our history we have been ruled by dictators, half by civilians, but even during the time of civilians authoritarian form of governance was there. तो authoritarian form of governance को fragmentation सूट करती है। और हमारी हिस्ट्री क्योंकि हम इस तरह से पढ़ते नहीं हैं, और स्टेट ये चाहती है कि वो एक सिंगल नैरेटिव दे, स्टेट डॉट्स कनेक्ट करके एक हिस्ट्री हमारे सामने लेकर आती है। मगर ये हमें तो अब नहीं करना चाहिए। इस लेवल पर आकर जब आप मुख्तलिफ, आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन भी ले रहे हैं, आप इनफॉर्मल एजुकेशन भी ले रहे हैं, आप मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के इस किस्म के प्रोग्राम्स भी सुनते हैं, देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया सीखना समझना चाहते हैं। वो क्या है प्लीज़? अब क्या है? व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यानी ये तो हम समझें कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं इस हाल में, ये हमने बताया। एक तो बात ये है कि आप सारा इल्ज़ाम दूसरों पर दे दीजिए। हुकूमत ने हमें फ्रेगमेंटेशन में डाल दिया, तो हम बस झगड़ रहे हैं आपस में पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए। एक ये है कि भाई हमारा तालीमी निज़ाम ही ख़राब है। तालीमी निज़ाम तो हमें कुछ सिखाता ही नहीं है, हमारी पोटेंशियल एक्सप्लोर ही हम नहीं कर पाते कि क्या हमारी पोटेंशियल है। इदारे सर्व नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ा
रीज़न है, बहुत अच्छी रीज़न है, इदारे सर्व नहीं करते। यानी रियासत अगर माँ की सूरत होगी तो रियासत ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी? इदारों के थ्रू करेगी। अच्छी जुडिशरी हो, अच्छी पुलिस हो, अच्छी सिविक इंस्टीट्यूशंस हों जो डिलीवर करते हों। मगर हमारे पास तो इदारे नहीं हैं, ना इनफॉर्मल ना फॉर्मल इदारे हैं, मगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे ड्यूटी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? कायदे आज़म के बहुत सारे स्लोगन्स हम लोग सुनते रहते हैं। एक स्लोगन ये है कि जिना ने कहा था, नौजवानों को करने के लिए मेरे पास एक ही नसीहत है, काम काम और काम। मगर ये मुख्तलिफ मवाक़ों पर मुख्तलिफ हैं। एक जगह जिना ने कहा था कि नौजवान इस वक्त पढ़ें। नौजवानों को कहने के लिए मेरे पास 3 अल्फाज हैं, एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। फर्स्ट एजुकेट योर सेल्फ एंड देन वर्क फॉर द गोल्स ऑफ लाइफ, वॉट एवर यू हैव, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया है अपने लिए। तो अगर हम यहाँ वर्क एंड वर्क से मोटिवेशन लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू मेक पाकिस्तान अ स्ट्रॉन्ग एंड वायबल स्टेट एंड देन टू अचीव आवर ड्यू प्लेस इन द वर्ल्ड। यानी जिना की लाइफ से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो ये है। अब हम इस रियासत को जो जिना ने हमें दी है, यानी हमने तो फॉर ग्रांटेड ले लिया है ना। आप लोग बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, एक आज़ाद रियासत में पैदा हुए हैं। अभी कोविड ने कैद किया था तो कैसा लग रहा था? पिछले साल को महसूस कीजिए ना, जब हम सब कैद थे, अब सब कुछ मौजूद था लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे कर्फ्यू में दुनिया की बहुत सप्रेस्ड नेशंस रहती हैं। कश्मीर में लोग रह रहे हैं 2019 से। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं। पैलेस्टीनियंस को आप देखिए किस तरह से रह रहे हैं। और वो जो कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी वो तो हमें पता था कि हमारी भलाई के लिए है, अभी ख़त्म हो जाएगी। मगर जब सप्रेशन होती है, ये आप तब महसूस करते हैं जब आप एक आज़ाद रियासत में नहीं होते। तो ये आज़ादी जो हमें मिली है, हमें क्या करना है? ये उधार है, वापस कर देंगे। एक जोक पॉपुलर हुआ था ना कि नौजवान नस्ल किसी का एहसान नहीं रखती, आधा उतार दिया आधा फिर उतार देंगे। ये मैं इशारा कर रही हूँ ईस्ट पाकिस्तान की तरफ। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या हमें ये करना चाहिए? तो बेसिकली जिस आज़ाद रियासत में हम बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं, बुरा भला कहने के बावजूद। इतनी फ्रीडम तो मिली हुई है ना, हम सब बुरा भला कह रहे होते हैं। हर वक्त बैठ के हर तरह से हम रियासत को बुरा कहते हैं, रियासती इदारों को बुरा कहते हैं। हमने सोचा है कि हमारा किरदार क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हम जिना को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बड़ा लीडर मान के, तो बड़े लीडर से कुछ सीख रहे हैं। ये दिन क्यों आते हैं कौमों की ज़िंदगी में कि वो रिवाइटलाइज करते हैं अपने गोल्स को, अपने पैशन को, अपनी मोटिवेशन को। वो याद करते हैं कि इनका मैसेज क्या था, हमें इस मैसेज को कैसे आगे लेके जाना है। देखिए, जिना ने स्टेट बनाई और अनफॉर्चुनेटली जिना बहुत अरसे ज़िंदा भी नहीं रह सके। और हमारे यहाँ जो लीडरशिप वैक्यूम हुआ उसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लीडरशिप वैक्यूम भी क्यों पैदा हुआ। लेकिन लीडर होता कौन है? एक अहम बात ये भी है, लीडर वो होता है जो इनिशिएट करता है, जो लोगों को डायरेक्शन देता है, जो देखता है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप में से कोई भी लीडर हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप में से कोई एक आदमी जो उठ के ये सोचता है कि हमें इसकी सलूशन देखनी है, वो लीडर है। तो अब हमें जिना के मैसेज से क्या सीखना है? जिना ने जिस रियासत का ख्वाब देखा था, जिसको हम चेरिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम जिना को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम वो रियासत बनाएं और दुनिया में इस रियासत को एक मिसाल बनाएं और ये ज़िंदगी अपने लिए भी अच्छी बनाएं, लोगों के लिए भी अच्छी बनाएं। फॉर दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज। तो क्या आप में से कोई 1, 2, 3, 4 आज ये फैसला कर सकते हैं कि हमें समझना है जिना ने क्या किया था और क्यों किया था? और अगर आज वैसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? लेट्स प्ले आवर पार्ट। हर आदमी अपना हिस्सा डालता है ना, और फिर एक अच्छे
सोसाइटी की मिसाल बनती है, अच्छी ज़िंदगी की मिसाल बनती है। तो हमें क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाउ कैन वी डू दैट? ये बहुत आसान है ये भी सोचना। और ठीक है, अब आपने, मुझे बहुत खुशी हुई आपने हैंड रेज़ किया कि हम चाहते हैं कि वाकई ऐसा हो। यानी जिना को सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि हम जिना को सर्व करें। जिना ने हमें सर्व किया था ना, एक रियासत। आप कितने आप नगमे सुनते हैं। अब आप जब पढ़ेंगे स्टेनले वॉलपट को पढ़ें। मैंने अभी कुछ स्लाइड्स, एक स्लाइड पे बहुत सारी बुक्स के टाइटल लगाए हैं। यानी आप ये चाहते हैं कि हमें समझना है, तो हमें कैसे समझना है? आप जिना के बारे में पढ़िए। अच्छा, जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना, उनकी एक क्वालिटी कॉमन है, वो पढ़ते बहुत हैं। इफ़ यू आर टू लीड, यू आर टू रीड। तो आप में से जो भी लीड करना चाहता है उसको रीड करना होगा, बहुत ज़्यादा रीड करना होगा। अच्छा, जिना पे हिंदुस्तान में भी बहुत लिखा गया, पाकिस्तान में भी बहुत लिखा गया, ब्रिटेन में बहुत लिखा गया, अमेरिकन स्कॉलरशिप बहुत है जिना पे। और वो किताबें जैसे स्टेनले वॉलपट को आप पढ़ें, जिना ऑफ पाकिस्तान, आप हेक्टर बोलेथो को पढ़ें, जिना, आप आयशा जलाल को पढ़ें उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल समझने के लिए, जिना द सोल स्पोक पर्सन। इश्तियाक कुरैशी को पढ़िए आप। कैन यू शो दो स्लाइड्स? द सेकेंड स्लाइड प्लीज़। जसवंत सिंह का है। जी, जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, जसवंत सिंह। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट बुक्स ऑन जिना, हाउ द एनिमी परसीव्स जिना। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अब तो मैं ये समझती हूँ कि आप बहुत अच्छे ज़माने में हैं, जहाँ पहले हम डिज़ायर करते थे कि अलादीन का चिराग हाथ आ जाए, अब हम सबके हाथ में अलादीन का चिराग है, जिसको आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। एक अच्छा सेल फोन विद इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप PDF पे ये तमाम किताबें अवेलेबल हैं। तो आप, एक तो ये समझना बहुत ज़रूरी है अपना रोल प्ले करने के लिए, यानी आपको क्या रोल प्ले करना है। एक्चुअली डायरेक्शन आप लेंगे, तमाम जवाब हमारे अंदर होते हैं। सो कम बैक टू द स्लाइड वी वर ऑन। अब जवाब हमारे अंदर हैं, लेकिन अगर आप मोटिवेशन लेते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे सर्व करना है, बाय रियलाइजिंग आवर ओन पोटेंशियल। जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, उन्हें अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं होती। वो ये समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एंड अकॉर्डिंगली दे चॉक आउट द प्लान फॉर लाइफ। तो वो हम सब कर सकते हैं। अब अहम बात यह है कि अपनी पोटेंशियल कैसे एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंड दैट इज़ द $1 billion क्वेश्चन, हाउ कैन वी रियलाइज आवर पोटेंशियल। अगर आप जिना से मोटिवेशन लेना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें, जिना के साथ चलें, और अगर लीडरशिप वैक्यूम है तो आप लीडर बन जाएं। मतलब वैक्यूम की एक और खूबी भी होती है ना, वैक्यूम में आपके लिए ग्रो करने के चांसेस बहुत होते हैं। तो जितनी वीकनेस आपको जहाँ नज़र आ रही है वहाँ आप अपना किरदार डालिए, थोड़े पैमाने पर डालिए, जितना कर सकते हैं, जब कर सकते हैं कीजिए। अब ये पोटेंशियल कैसे रियलाइज़ करें, ये बहुत अहम बात है। और यहाँ हमारी यूथ स्पेसिफिकली डिस्ट्रैक्टेड है, डायरेक्शन लेस है, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि बड़े लोगों की शख्सियात से क्या सीखना है, किस तरह से सीखना है, डायरेक्शन क्या लेनी है। सबसे अहम बात ये है, मतलब पोटेंशियल अपनी कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे रियलाइज़ करें, कैसे हम खुद को यूज़फुल बनाएं दुनिया में। आप एक्सप्लोर कीजिए खुद को, अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए, एजुकेशन जो आप हासिल कर रहे हैं ना, एजुकेशन की फ़िलॉसफी आप में से कुछ लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी। एजुकेशन का एक मकसद तो ये था फ़र्द को इंसान बनाना, ये इनलाइटमेंट एक पर्पस था। यानी बायोलॉजिकली तो मैन इज़ सेड टू बी अ सोशल एनिमल। अब ये एनिमल अगर ह्यूमन बीइंग बन जाए, तो पहले तो एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब दुनिया मटीरियलाइज होती गई, तो एक यूटिलिटी फैक्टर अटैच हो गया एजुकेशन के साथ। एजुकेशन का पर्पस है आपको जॉब दिलाए। अच्छा, इसने बहुत मसले पैदा कर दिए। अब आपके लिए अच्छा आदमी वो है जो अच्छा कमाता है। अच्छाई की डेफिनेशन ये हो गई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कामयाब है वो अच्छा है। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम 18-19 सेंचुरी के एजुकेशन के जो कॉन्सेप्ट था एनलाइटमेंट का, उस पर चले जाएं। वी आर टू फाइंड अ मैच, ये हमें करना है।
तो आप जो तालीम हासिल कर रहे हैं आप उसको ठीक तरह से हासिल करें, उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। एक तो तालीम का ऑब्जेक्टिव है ना, आपकी डिग्री का ऑब्जेक्टिव ज़रूर हो सकता है जॉब लेना, लेकिन तालीम का ऑब्जेक्टिव जॉब लेना नहीं होना चाहिए। तालीम का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, आप अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप नॉलेज गेन कीजिए। द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू गेन नॉलेज। तालीम का फौरी रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि वो आपको नॉलेज सीकर बनाए। एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो आप ले रहे हैं, दैट डजंट मीन दैट इज़ गिविंग यू नॉलेज, इट्स मेकिंग यू अ नॉलेजेबल मैन। इट्स नॉट द केस। वो आपको एक कंपार्टमेंटलाइज्ड इंफॉर्मेशन तो दे सकती है, क्योंकि वो आपके शोबे की इंफॉर्मेशन दे रही है। एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग के बारे में पता होगा, डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में पता होगा। मतलब टू मी ऑल इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स आर मैट्रिक पास। उसके बाद उनकी नॉलेज की ग्रोथ ख़त्म हो गई है, सिर्फ सब्जेक्ट की ग्रोथ है, और पढ़ते वो नहीं हैं। यानी हम बहुत दूर हैं ब्रॉड बेस्ड नॉलेज से। तो मेरा मैसेज जो हम्बल वक्त मैंने इस फील्ड में गुजारा है वो ये है दैट वी शुड लर्न फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। वी शुड लर्न हाउ टू लर्न, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जो किताबें आपने पढ़ी हैं, कोर्स की किताबें पढ़ने में कितना वक्त लगता है? आप पढ़िए मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में, मौलाना मोहम्मद अली शौकत के बारे में, हसरत मोहानी के बारे में। हमारे लीडर्स हैं ना, इन सबको कोर्स की किताबें पसंद नहीं थी आपकी तरह, मगर उनकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट थी। उनका कहना ये था कि कोर्स की किताबें आपकी नॉलेज को महदूद कर देती हैं, आपकी थिंकिंग सलाहियत को महदूद कर देती हैं, आपके इंटेलेक्ट को महदूद कर देती हैं। सोचें ना, हम ग्रेड 1 से ग्रेजुएशन तक जिना के बारे में पढ़ते आए। कभी आपने ये सुना कि इस मुल्क में डिबेट रही कि पाकिस्तान स्टेट का कैरेक्टर ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए? आज आप बताइए हॉल में कितने बच्चों ने ये पढ़ा है कि हमारी सियासत में एक अहम डिबेट ये है कि कैरेक्टर ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए? नहीं पढ़ा ना। हमारे तो तारीख़ में तो सभी अच्छा होता है, तारीख़ में सब अच्छा है। क्योंकि तारीख़ देखें, एक होती है रिजीम की तारीख़, एक होती है मासेस की तारीख़, एक होती है एलीट की तारीख़। तारीख़ लिखवाई जाती है। तो हमारी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, यानी अगर हमें अपनी पोटेंशियल रियलाइज़ करनी है, अगर हमें रोल प्ले करना है, अगर हमें जिना के साथ चलना है, अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है जिना के आइडियल्स को, तो हम कैसे करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एक्सप्लोर आवर पोटेंशियल, और उसका पहला दरवाज़ा एजुकेशन है, ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, ब्रॉड बेस्ड नॉलेज। तो वो आप हासिल करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपके आइडियल्स क्या हैं, आप ज़िंदगी को कैसे गुजारना चाहते हैं। यही क़ायदे आज़म ने कहा था कि आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन पहले ख़ुद को एजुकेट करें। एजुकेशन आपको सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग देती है, और फिर ये जो मोरालिटी के आइडियल्स हैं, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, फेयर प्ले, ये सब तो हमें करना ही चाहिए ना। तालीम आपको देखें, तालीम का फौरी असर ये होना चाहिए कि तालीम आपको नॉलेज सीकर बना दे, फ़िलासफ़र बना दे सबको। फ़िलासफ़र कौन होता है? हु हैज़ लव फॉर नॉलेज, वो फ़िलासफ़र है। और इस नॉलेज का फौरी असर ये होता है कि आपके अखलाकियात बेहतर हों। अच्छा, अखलाकियात क्या होता है? ये सिर्फ सच बोलना अखलाक नहीं होता, दूसरों के काम आना अखलाक नहीं होता। चीज़ों को सही तरह करना, मामलात में ठीक होना अखलाकियात है। तो अब आप ये समझिए कि आपके आइडियल्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। उसके बाद फिर आप जिस बात को सही समझते हैं, मैं आज सिर्फ जिना की कोट्स पर महदूद रखूँगी ख़ुद को। जिना ने ये कहा था कि फ़ैसला करने से पहले 100 दफ़ा सोचो, लेकिन जब फ़ैसला कर लो तो फिर एक अच्छे इंसान की तरह उस पर कायम रहो। ठीक है, तो फिर आपको अब डिटर्मिनेशन के साथ, जिना से हम जो सीख सकते हैं वो डिटर्मिनेशन है। अब आपने अच्छा इन्फॉर्म्ड डिसीजन किया, अब आप उसके लिए काम कीजिए, तो आपकी पोटेंशियल रियलाइज़ आप करने लगेंगे। आप सबका फ्यूचर कैसा होना चाहिए?
आप में से किसको ये शौक़ है कि पता चले कोई ऐसा नजूमी मिल जाए जो बता दे कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा? सबको ये शौक़ होता है ना, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं बस ये पता चल जाए मुस्तकबिल में क्या होगा। कितने लोगों को शौक़ है ये सोचने का, समझने का, जानने का? किसी को नहीं? आपको है, आपको है, ओके ओके। कितना ज़्यादा शौक़ है कि ये पता चले कि मुस्तकबिल कैसा होगा? बहुत ज़्यादा शौक़ है आपका मुस्तकबिल। और ये बात भी मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैं कह रही हूँ, आपका मुस्तकबिल आपका हाल है। अच्छा, जैसा आज आप गुजार रहे हैं वो आपका कल होगा। अब जो आपके गोल्स हैं, आइडियल्स हैं, जहां आप खुद को 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद देखना चाहते हैं, आप जैसा खुद को देखना चाहते हैं, आप जैसा अपनी सराउंडिंग्स को देखना चाहते हैं, आप जैसा खुद को देखना चाहते हैं, वैसा आज से परफॉर्म करना शुरू कर दें। ये हाल आपका मुस्तकबिल है। तो मुस्तकबिल क्या है कि आप परफॉर्म करना शुरू कर दें उस तरह से। हम सब एक्टर्स हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप वो परफॉर्म करते जाएंगे और उन आइडियल्स के लिए आप काम करते रहें, आज से ही वो काम शुरू होगा। ये मत सोचें कि आज तो मोटिवेशन ले लिए, कल से काम करेंगे या परसों से काम करेंगे, या मैं ग्रेजुएशन कर लूँ तो मैं ये करूँगा, या मैं ये कोर्स कंप्लीट कर लूँ तो मैं ये करूँगा, या मेरी ज़िंदगी में ये मसला हल हो जाए तो मैं ये करूँगा। सिंपल चीज़ें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन वो सिंपल होती नहीं हैं। बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जो हम सबको पता हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। सबको मालूम है ना? क्या हम फॉलो करते हैं? कोशिश करते हैं ना? जो कोशिश करते हैं वो तो कामयाब हैं, आगे सीटों पे बैठे हैं। मसला ये है कि वो तो फल खाने की एज में है। जो पीछे बैठे हैं ना, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमें इस वक्त लगता है हम सब कुछ एक्सप्लोर कर लेंगे। सो ये जो जिना आपकी उम्र में थे ना, उस वक्त वो बहुत कुछ कर चुके थे। तो आपको ये सोचना है, जब मैं जिना पे रिसर्च करी थी ना, हमारे एक टीचर ने कहा था आपको जिना पे रिसर्च करनी है, जिना के साथ सोइए, जिना के साथ जागिए, जिना के साथ उठिए। तो ये बात सुनने में अजीब सी लगी थी, जिना के साथ सोइए, जागिए, उठिए। इससे मुराद ये थी कि जिना को अच्छे से पढ़िए कि वो क्या करते थे। अच्छे से पढ़िए, ये देखिए कि मुख्तलिफ औकात में उन्होंने क्या किया था, और फिर उसके मुताबिक काम करना शुरू कीजिए। हमारे यहाँ कौन सी ऐसी नेगेटिव सोच है जिसको हम बदल के ज़्यादा पॉजिटिवली सोच सकते हैं, ज़रा बताइए। फौरी तौर पे तो एक बात ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। एक ये अप्रोच है कि हम मुंडेन हैं, यानी सब कुछ हो रहा है ना, वो बहुत ख़राब है, एंड वी आर आउट ऑफ दैट सर्कल। तो हम विलिंग नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए। एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि वी डू स्केप गोटिंग। हम अपने फेलियर्स की जिम्मेदारी दूसरों को दे देते हैं। ये स्केप गोटिंग भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही ब्राइट पिक्चर है, लेकिन ऑल इज़ नॉट दैट नेगेटिव। हमारी सियासत में ज़ाहिर है बहुत सारे मसले हैं, मगर एक बहुत अच्छा ट्रेंड ये है कि एक मिडिल क्लास इवॉल्व हो रही है अच्छी, और उस मिडिल क्लास के इंटरेस्ट ये होते हैं कि उसे सिविक एमिनिटीज़ मिलें, उसको रोड पे ट्रैफिक जैम ना मिले, उसको सीवरेज का ठीक निज़ाम मिले, उसको एजुकेशन अच्छी मिले, उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो फिर अपना प्रेशर प्लेस कर रहे हैं। तो जहाँ बहुत सारे नेगेटिव ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, एक अच्छा ट्रेंड ये इवॉल्व हो रहा है। 4-5 अच्छी चीज़ें जो इवॉल्व हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फर्स्ट इज़ दिस डिजिटल रेवोल्यूशन। उसने इंफॉर्मेशन एक्सेस बहुत दे दी है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को हम रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी अपनी नॉलेज बहुत शेकी है। तो जैसे जैसे अब ये नॉलेज भी बढ़ेगी तो हम रिफ्लेक्शन के साथ ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो सोसाइटी की हो रही है बहुत हेल्पफुल फैक्टर है। फिर मिडिल क्लास का बढ़ना बहुत हेल्पफुल फैक्टर है। और जो ओपननेस है सोसाइटीज़ की इन दी एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसने भी हमें बहुत डायरेक्शंस दे दी हैं। तो नेगेटिविटी एक सिर्फ ये है कि हम ये समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, और उसमें जो अच्छी फोर्स है वो खामोश है।
तो ये चीज़ हमें ख़त्म करना चाहिए। हम सब कर सकते हैं, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, तो ये हम कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जो एजुकेशन का पर्पस है वो काफ़ी चेंज हो गया है। लोग अब सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं ताकि डिग्री हासिल हो, और डिग्री इसलिए हासिल करते हैं ताकि उनको कामयाबी हासिल हो। और कामयाबी जो है वो आजकल एक बड़ी नैरो तरीके से देखी जाती है, सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट से देखी जाती है। तो आप क्या कहेंगे अगर लोगों को कि किस तरह की कामयाबी को आगे pursue करना चाहिए? जो लोग मॉनेटरी बेनिफिट्स को कामयाबी समझते हैं वो बहुत ही शैलो थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। तो आप ये बात समझिए, जैसे जैसे आपको सेल्फ रियलाइजेशन और फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाएगी, आपको सही और गलत में तमीज़ पता चलती जाएगी। अच्छा, अब ये लोगों का मसला है, आपका मसला ये है कि आप ख़ुद को दुनिया की नज़र से देखते हैं या अपनी नज़र से देखते हैं। अच्छा, इस पर एक पॉलिटिकल भी बहुत सारी मूवमेंट्स चल रही हैं। एक मूवमेंट इस ज़माने में बड़ी पॉपुलर हो रही है, मिनिमलिज़म। मिनिमलिज़म ये है कि देखिए, जो कॉरपोरेट साइकिल है ना, यानी वेस्ट की हम बात करते हैं, सोसाइटी अच्छी है, वेस्ट की जो ग्रोथ है वो कैपिटलिज्म पे हुई है, और कैपिटलिज्म की सस्टेनेंस इस बात पे है कि परचेजिंग होती रहे। अब उन्होंने हमें एक साइकिल में लगा दिया, उन्होंने हमें ब्रांड कॉन्शियस बना दिया है। हम अननेसेसरी स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कमाने की ज़रूरत है। अब हम कमा रहे हैं, हम स्पेंड कर रहे हैं, और स्पेंड कर रहे हैं तो फिर खर्च भी करना है। अब ये जो एक विशियस साइकिल चल रहा है ना, चूँकि हमने ये समझ लिया कि मुझे लोग बेवकूफ़ कहेंगे अगर मैंने ब्रांड नहीं पहनी, अगर मैंने एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो नहीं किया। तो वेस्ट का कैपिटलिज्म का एक ऑब्जेक्टिव ये था, हर सोसाइटी में, सिविलाइजेशन में कुछ बुराइयाँ होती हैं कि एक पर्टिकुलर एलीट क्लास तैयार की जाए जिसको हम कॉर्पोरेट क्लास कहते हैं, और वो उनकी ग्रोथ को बरकरार रखे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। आप ये देखिए कि आपको खुशी क्या देती है, इनर खुशी किस चीज़ से मिल रही है, इनर सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से है, और वो फिर आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। आप पढ़िए, आप बानो खुदसिया साहिबा की राजा गीत पढ़िए, और उन्होंने जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ रही ना फ़र्द की ग्रोथ की, उन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और वो आपको कुछ जुमले वो फिर रेकरिंग उसका इफ़ेक्ट होता है, वो आप समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको मुतासर करती है, खुशी के लिए काम कीजिए, लोगों के लिए काम मत कीजिए। Any other question? No? Thank you very much. And once again, my sincere apologies on being late. Hello everyone and Assalamu alaikum. My name is Alian Abdullah and my poetic name is Alian Ali. So I have written a poem for Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, how he wanted to see Pakistan when he created Pakistan, what was his imagination in the creation of Pakistan. But sadly we are not up to his merit, but inshallah from the ashes we will rise again, inshallah. So it is in Urdu, so here it is. मुनफरिद है दुनिया में अमन का पैगाम पाकिस्तान, कर दे जो दिन को मुनव्वर, ऐसी है शाम पाकिस्तान। लाजवाल कुर्बानियों का इनाम पाकिस्तान, कर दे जाने निछावर तुझे सलाम पाकिस्तान। रहे ता क़यामत कायद का पैगाम पाकिस्तान। नज़रिया इस्लाम के अक्स की तस्वीर पाकिस्तान, उम्मत मोहम्मद को जकड़े वाहिद जंजीर पाकिस्तान। दुनिया लर्ज़े सदा वजूद से वो तकबीर पाकिस्तान, मिटा न सके जिसे कोई वो लकीर पाकिस्तान। रहे ता क़यामत कायद का पैगाम पाकिस्तान। ख्वाब इकबाल का बेमिसाल दीदार पाकिस्तान, मुसलमान हिंद की ही जुस्तजू का इकरार पाकिस्तान। दुश्मन न करे पार कभी वो दीवार पाकिस्तान, सफ़े अव्वल के ममालिक में है शुमार पाकिस्तान। रहे ता क़यामत कायद का पैगाम पाकिस्तान। डूबे जहाँ सफ़ीना कुफ़ार वो किनारा पाकिस्तान, कर दे रोज़ रोशन जहाँ को वो सितारा पाकिस्तान। बेबसी में मज़लूमों का सहारा पाकिस्तान, नाज जिसके वजूद पे ऐसा है हमारा पाकिस्तान। रहे ता क़यामत कायद का पैगाम पाकिस्तान। हको बातिल को कर दे जुदा वो तलवार पाकिस्तान, मुश्किल में बेकस मुसलमानों का यार पाकिस्तान। उम्मत मुस्लिमा के सर पे है सजी दस्तार पाकिस्तान,
अलम हक आलम में लहराता अलमदार पाकिस्तान, रहे ता क़यामत कायद का पैगाम पाकिस्तान। शुजातो जुर्रत की जाविदां दास्तान पाकिस्तान, सिंधी बलोच पंजाबी पठान की जान पाकिस्तान। अज़मतो हिम्मत का बुलंदो बाला निशान पाकिस्तान, है कुल जहां की ज़ुबान पे सिर्फ सुभान पाकिस्तान, रहे ता क़यामत कायद का पैगाम पाकिस्तान। थैंक यू एवरीवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 2-3 छोटी छोटी बातें मैं 2 मिनट लूँगा, मर्जी है कि जो कि ये बता सकती थी लेकिन इन्होंने वक्त की वजह से नहीं बताई। वो ये कि कायद आज़म की जो ज़िंदगी में, जैसे कि आपने फरमाया कि इनको बार बार हमें पढ़ना चाहिए कि कायद आज़म शुरू में क्या थे। ही वॉज एन एम्बेसडर ऑफ गुडविल बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। उनको तो ये खिताब था कि अमन के सफ़ीर हैं ये, और वो कांग्रेस में थे। और फिर जब उनको 1906 में मुस्लिम लीग बनी बंगाल में, तो उनको ज़बरदस्ती उसमें लाया गया, लेकिन उसके बावजूद तो उन्होंने कांग्रेस की मेंबरशिप नहीं छोड़ी। एक छोटी सी कहानी जो सबको मालूम होना चाहिए कि जब यहाँ ग्रैंड कैफ़े ग्रैंड था यहाँ मेट्रोपोल के सामने, वहाँ से डबल रोटी आती थी कायद आज़म और फातिमा जिन्ना के लिए, तो उसका सांचा बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा भाई हम लोग तो मुख्तसर थोड़ी से खाते हैं डबल रोटी के स्लाइसेस, तो आप ये वेस्ट होती है। तो उन्होंने ख़ास तौर से वो छोटा सांचा बनवाया जो अब भी मौजूद है। आप देख रहे हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव की हम बातें करते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो कि हमको सीखनी है। बाज़ार से इन्होंने कुछ मंगवाया किसी से, तो वो देखा उन्होंने कि क्या क्या मंगवाया भाई, तो देखा उसमें 17 रुपए की फातिमा जिन्ना की कुछ चीज़ें थी, 17 रुपीज़। उन्होंने कहा कि ये फातिमा एक अकाउंट से निकालो पैसे, ये गवर्नमेंट की चीज़ों में नहीं आएगा बिल्कुल भी। 17 रुपीज़। कैबिनेट का इजलास, लोगों ने कहा भाई चाय, उन्होंने कहा तुम चाय घर से पी के नहीं आते हो। जब तक जिंदा रहे कायद आज़म, चाय नहीं पेश की गई, पानी पियो पानी। और एक बात अभी इन्होंने बहुत ही, नौशीन ने बड़ी अच्छी कही, वो ये कि वैक्यूम ऑफ लीडरशिप, इसके बारे में लोग बहुत हमारे यहाँ इसके बारे में नहीं सोचते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो आज डिफरेंस है, जो आपको बहुत बड़ा गैप नज़र आता है, माशी गैप नज़र आता है, तालीमी गैप नज़र आते हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ है, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गए। वजह उसकी एक है जिस पर हम नज़र नहीं डालते। हिंदुस्तान में नौशीन 25 साल तक फ्रीडम फाइटर्स की हुकूमत रही, और यहाँ पहले साल ही हमने मार दिया। 25 साल मतलब 17 साल नेहरू, फिर शास्त्री 4-5 साल, फिर इंदिरा, आप सब इनको कैलकुलेट करें, तकरीबन रुबा सदी उन लोगों ने जो कि उन्होंने जाने दी, जेल गए मुल्क के लिए। तो ये बड़ी अहम बात है कि हमारे बहुत बड़ा वैक्यूम रहा। एक बात जो इन्होंने बड़ी अच्छी बताई है कि उसको भी हमें याद रखना चाहिए और हमें हर मौके पे कहना चाहिए। जैसे उन्होंने नौशीन ने कहा कि एक मुल्क था जिसको तकसीम किया गया, एक केक था जिसको काट दिया गया और बड़ा टुकड़ा उधर चल गया, छोटा, ये ऐसी बात नहीं। जावेद जब्बार साहब की किताब जो उन्होंने लिखी है इसके ऊपर, लाजवाब किताब पाकिस्तानियत के ऊपर, उन्होंने यही साबित किया कि तकरीबन 562 समथिंग लाइक दैट, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी इंडिया की। इट वाज नेवर ए वन कंट्री। जो लोग सकते हैं कि एक मुल्क को काट पीट के बराबर कर दिया, कभी भी किसी एक की हुकूमत नहीं रही है एज ए कंट्री। देयर वर 560, मोर देन 560 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये कहना, और तो मैं बिल्कुल तायीद करता हूँ इनकी बात की, कि हमने किसी आज़ादी वहाँ से नहीं ली किसी से, हमने तो आज़ादी एक रीजन में से एक आपने मुल्क बनाया है। हाँ, खैर बातें बहुत सारी हैं, मैं इसको मज़ीद उसमें नहीं जाऊँगा।
लेकिन एक बात जो आखिरी सवाल इन लोगों ने बच्चों ने किया था पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल का मतलब ये कि उसके लिए हमारे पास तरकीबें हैं, मेरे पास भी कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जैसे उसमें ये सबसे अहम काम ये है काम करने से पहले कि यू हैव टू फाइंड योर ओन टैलेंट, ओन एरिया ऑफ एक्सेलेंस, कि मुझे क्या, एक तो ये कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ मैं बादशाह बन जाऊँ, लेकिन मुझे क्या आता है और मेरे एरिया ऑफ एक्सेलेंस क्या है। वो ब्रिग्स एंड मायर्स की जो मैंने मर्ज़ी आपको लिखवा रखा है, हम किस दिन वो एक्सरसाइज करेंगे, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है और हमारा एरिया ऑफ एक्सीलेंस क्या है। उस डायरेक्शन में फिर आपको वो अच्छे अच्छे काम करने हैं जो नौशीन ने बताया। नौशीन, आई थैंक यू वेरी मच, और बहुत हमेशा की तरह एनलाइटमेंट हुआ, हम सीखते हैं आपसे, अल्लाह आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। थैंक यू वेरी वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत खुश हूँ नुसरत साहब ELP चेयरमैन और उनकी फातिमा नकवी वगैरह की ज़ेर सरपरस्ती ELP के अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुजफ्फर साहब उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरे PSCC के तमाम शोबों को मैनेज कर रहे हैं, और मर्ज़िया शाह का तो फिर क्या कहना कि ELP में उन्होंने जान डाल दी है। डॉक्टर नौशीन वसी साहिबा की बातें सुनी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं मुख्तसर से इसी इनकी तकरीर से कुछ नुक्तों पे बात करूँगा। जैसा एक किसी का सवाल का जवाब दिया कि आप वोट सोच समझ के दीजिए, और बाज़ दफ़ा ये सोच कर ख़ुद ही फैसला कर लेते हैं कि जैसे हम वोट देंगे वो जीतेगा नहीं। असल में हमारे मुल्क का जो अलमिया है वो ये है कि जितने वोटर्स हैं वो सियासी जमातों को एक फ़िक़े के तौर पे लेते हैं कि मैं फ़लाँ जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैंने हर हालत में फ़लाँ जमात को वोट देना है। अगर आप अपने तौर पे अगर आप समझते हैं कि आप आज़ाद हैं ज़हनी तौर पे, तो वोट देने का फ़ैसला भी आज़ादी से कीजिए। जमात पार्टी को फ़िक़े के तौर पे नहीं लीजिए, चूँकि मेरा ये फ़िक़ा है तो मैंने तो इस फ़िक़े को ही फॉलो करना है। तब्दीली उसी वक्त आ सकती है कि जब जो बेहतर काम कर रहा है, जो बेहतर काम कर सकता है, उसका इंतखाब करें। दूसरा, यकीनन कायद-ए-आज़म एक मोहम्मद अली जिन्ना नाम है, लेकिन कायद-ए-आज़म का लक़ब उन्हें मिला, वो डिज़र्व करते थे। उसकी इससे भी बढ़कर हमें जो हमारा कायद है, पूरे मुसलमानों का कायद है, वो हमारे सरकार दो आलम है। क्या हम उनकी तालीमात पे और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? वो उस रास्ते पे चलेंगे तो खुद ब खुद कायद-ए-आज़म का रास्ता बीच में मिल जाएगा। हम आम तौर पे कहते हैं, हम मुसलमान का जो मज़हब है उस दो हिस्सों पे है। एक है सफाई निस्फ़ ईमान, इस पर किसी फ़िक़े को इख्तलाफ नहीं है। दूसरा है हक़दार का हक़ देना या हक़दार का हक़ नहीं मारना। जब हम हक़दार की बात करते हैं, हक़ मारने की या हक़दार को हक़ देने की, तो हमारे जहन में फ़ौरी बहुत बड़े पैमाने के जायदाद और उस किस्म के हक़ के फ़ैसला आता है। वो भी है, लेकिन अगर हम रोड पर सफ़र कर रहे हैं, हम जिस तरफ सिंध पे जा रहे हैं रेड लाइट है, और हम रेड लाइट क्रॉस करके हम उस ग्रीन लाइट वाले का रास्ता को हक़ मार देते हैं, तो हमने हक़ मार दिया। हम अपने तौर पे जो रोड पे रोज़मर्रा के मामलात में हक़दार को हक़ देना और सच बोलना नहीं शुरू करेंगे, माशरा कभी वैसा नहीं बन सकता जैसा आप यूरोप का बनाना चाह रहे हैं। वहाँ जाके देखिए, यहाँ जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने भी कहा, ये मुसलमान मुल्क है लेकिन इस्लाम हमें वहाँ नज़र आता है। जिन लोगों का भी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, आपको अमली तौर पे कदम कदम पे वहाँ इस्लाम नज़र आता है और यहाँ नज़र नहीं आता। हम जहाँ तक बात हुई कि कायद-ए-आज़म मिनॉरिटी के
हामिद है। हमारा मज़हब पूरा पूरा उन्हें हक़ देता है कि किसी के मज़हब को, किसी के जो कोई किसी को मानता है उसको बुरा ना कहो। हम सिर्फ अगर सरकार दो आलम की तालीमात को पढ़ना और समझना छोड़ें, अमल करें, तो पूरा माशरा वैसा बन सकता है, मुल्क वैसा बन सकता है जैसा आप चाहते हैं। अमल कीजिए, पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद पढ़ने लोग नावल पढ़ के भी रख देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बल्कि होना ही ये चाहिए कि हम जो पढ़ें और जो हम सबक सीखें माशरे से, उस पर बेहतर से अमल करें। अगर ये नहीं करेंगे, अगर ख़ुसूसन मैं फिर एक दफ़ा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जब इलेक्शन में, जैसा डॉक्टर नौशीन साहबा ने कहा कि वोट देने का फ़ैसला आपका है, जो KPK की मिसाल दी और दूसरे इलाक़ों में जो वोट्स की से ज़रिए तब्दीली आई, वो वोटर का फ़ैसला था जिसकी वजह से तब्दीली आई। हम जब तक पार्टी और जमात के वाबस्तगी को फ़ैसला से आज़ाद नहीं करेंगे, हम वो तब्दीली नहीं ला सकते। अब बाकी लफ्ज़ तब्दीली के मायने तो कुछ और हैं, लेकिन वो चूँकि तब्दीली का जुमला कुछ और शोहरत हासिल कर गया है, तो जब भी ये जुमला आता है तो फिर वजाहत करना पड़ता है, ये वो वाली तब्दीली की बात नहीं है। बस, और चूँकि आप लोग नौजवान हैं, इस बात पे आप तहिया करिए, आप ख़ुद अच्छे बनिए, माशरे पे तनकीद नहीं करिए। माशरा फ़र्द से बनता है, आप फ़र्द हैं। आप बेहतर हो जाइए, माशरा ख़ुद बेहतर हो जाएगा। मैं बेहतर हो जाऊँगा, माशरा बेहतर हो जाएगा। हर जगह माशरे पे, मुल्क पे, निज़ाम पे तनकीद ज़रूर होती है, लेकिन हम जिस चीज़ की तनकीद करते हैं, हम खुद अमल वही कर रहे होते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। First of all, I would like to thank Dr. Nausheen Wasi to spare his precious time and share his very important knowledge with our students regarding Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. I am also very thankful to our President Sayyid Makhdoom Ali Riaz and Sayyid Nusrat Ali Saab to be here. आज इन सब लोगों की बातें सुन के मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब यहाँ पे आज एक इस चीज़ का तहिया करें कि हम पहले तो ये कि क़ायद-ए-आज़म के बारे में पढ़ें और पूरी कोशिश करें कि अपना वो हिस्सा डालें कि हम इस पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बना सकें। बाकी आप तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आपने इतने अच्छे तरीके से इस पूरे सेशन को अटेंड किया। थैंक यू वेरी मच।